After nearly 30 hours, Hemant Soren, who has reappeared, his first reaction that has also come in as the Jharkhand Chief Minister held a meeting in Ranchi with his ministers and MLAs. Remember, JMM is also to hold a media briefing at about 4:30 p.m. in an hour from now. Hemant Soren's first reaction that will play out for our viewers after he had vanished, according to the ED, that was conducting searches at his Delhi and Ranchi residences respectively. Crucial recoveries have been made. Remember, he is to face the ED tomorrow for questioning. And this afternoon, he has been holding crucial meetings. The meeting with ministers and MLAs, where his wife was also a part of it. And Hemant Soren, who was missing in action and reappeared in Ranchi, held a meeting. Thereafter, he also was at Gandhi Bhavan, where he paid tributes to Mahatma Gandhi. And his first reaction that has just come in, which we'll try and play out for our viewers shortly from now. Let's listen in. 11,000 रुपए का इनाम रखा गया था आपके ऊपर। क्या दिक्कत है, जिसको तकलीफ है नहीं। 11,000 रुपए का इनाम रखा गया था आपके ऊपर। मतलब क्या? ले लो तुमने सब में बांट देना। फिर मत बोलिएगा जिसका छोड़ 11,000 रुपए का इनाम रखा गया था आपके ऊपर। क्या दिक्कत है, जिसको तकलीफ है नहीं। 11,000 रुपए का इनाम रखा गया था आपके ऊपर। मतलब क्या? ले लो तुमने सब में बांट देना। All right, so he's clearly evading direct questions with regards to this case as Hemant Soren in the eye of the media, where he is being asked about these allegations against him. Remember, he is to face the ED officials in the illegal sand mining scam, and that is to happen tomorrow. Meanwhile, his residences both in Delhi and Ranchi have been searched, where crucial recoveries have been made. Hemant Soren, who is now preparing a backup plan ahead of the ED action. Piyush Ori joining us on the phone line. Piyush, that was the first reaction that came in from Hemant Soren after 30 hours, where he was first touted as missing, and now he has reappeared. He has been holding back-to-back meetings. What can one make of the statement that just came in? So yes, Anisha, what I can tell you is that yes, this is the first reaction that has been given by Hemant Soren, and over here you can definitely see that he, as a true politician, seems to be confident, and he has put it very bluntly that all these actions that have been taken against him is a vested interest, is being done under vested interest, is being done under the malified intent. But the question remains is that the Enforcement Directorate, who have been able to find some vital evidences against the prevailing Chief Minister, with taking into consideration that there have been some massive raids that have been conducted in Delhi and in Ranchi, where they have been able to confiscate 2 luxury vehicles and also been able to seize rupees 36 lakh. So all these evidences are going to be confronted to Hemant Soren. He was expected to be present yesterday in Delhi when these raids were being conducted, because under the Prevention of Money Laundering Act, the person whose house and whose premises are being raided needs to be present because his assent needs to be taken. However, it did not happen, and we saw an unprecedented situation where a sitting Chief Minister was virtually absconding. So yes, he has now replied to it. He has been seen after 30 hours. He has replied like a true politician that all this which is being conducted is a malified intent. But at the end of it, tomorrow, when he's going to present himself for the questioning in front of Enforcement Directorate, it is going to be very interesting to see that what
action will the central agency is going to take, taking into consideration that now there is some mounting evidences that have been collected against the Chief Minister. Back to the studio. Absolutely, Piyush. Do stay on with us as we play out more reactions for our viewers coming in on this big story. एसटी सर, जिस तरह लगातार एक के बाद एक नेताओं के घर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, लालू यादव ईडी के सामने पेश हुए, हेमंत सोरेन तो 10वें नोटिस पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लगातार 2 दिनों तक दिल्ली में थे, अनट्रेसेबल थे, अब रांची पहुंच गए हैं। इस एक कांग्रेस नेता को भी ईडी का नोटिस किया है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है, लेकिन समाजवादी पार्टी से किस तरह से देखेंगे? जाहिर सी बात है, सभी समाजवादी पार्टी का पूरा देश जान रहा है कि जो हमारी सेंट्रल एजेंसी है उसका कितना मिसयूज हो रहा है, सियासत में उनको घसीटा जा रहा है। जो भी उनके इस रूलिंग पार्टी के खिलाफ होएगा उसको बर्बाद करने की साजिशें हैं, जेल भेजने की साजिशें हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जो खुद इस वक्त बीमार हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उठ बैठ नहीं सकते हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, दिल्ली में मौजूद थे लेकिन पेश नहीं हुए, ईडी उनकी गाड़ी तक जब्त करके लेके गई है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, हेमंत सोरेन पेश क्यों नहीं हो रहे? लगता है कि वाकई में जो तमाम एविडेंस है उनके खिलाफ पुख्ता है। नहीं हो सकता है उस एविडेंस के खिलाफ वो अपनी एविडेंस इकट्ठी कर रहा हूँ, पेश तो होना पड़ेगा ही, जाएंगे कहाँ? तो वो जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए उसके काउंटर करने के लिए भी वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ। तो सर एक और बात महागठबंधन को लेकर के भी कई तरह के क्यास चल रहे हैं। काफ़ी पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि महागठबंधन काफ़ी आगे तक चल नहीं पाएगा। नीतीश कुमार ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन नहीं पाया है, ना ही वेस्ट बंगाल में, ना ही पंजाब और दिल्ली में। अखिलेश यादव ने 11 सीटें कांग्रेस को दी हैं। लगता है कितनी दूर तक जा पाएगा ये महागठबंधन? देखिए, हमें पूरा यकीन है महागठबंधन अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। सीट शेयरिंग हम आराम से कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी की केमिस्ट्री हमें पता है, और बाकी और जगहों पे भी थोड़ा सा नरम गरम होके सब मामला सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो अब मैं क्या कहूँ, पलटू राम है वो, उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। एक और बात, क्या यूनिटी देखने को मिलेगी इस बार बजट सेशन में? क्या अपोजिशन यूनिटी देखने को मिलेगी? हमने अभी कहा है कि हम पॉजिटिव इश्यूज में सरकार का सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव इश्यूज में। लेकिन जहां आप निगेटिव काम करते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी को सप्रेस और पर्टिकुलर कम्युनिटी को उठाने की बात करेंगे, वो हम साथ नहीं है। हम इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। इसका मुद्दा उठाएंगे यकीनी तौर पे, ये तो हमारा मेन मुद्दा है, अखिलेश जी का मेन मुद्दा है ये। 3.5 करोड़ जनता जो है झारखंड की, वो चिंतित है मुख्यमंत्री जी के लिए कि मुख्यमंत्री कहाँ है। और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में वो जो एक सीरियल चलता था लापतागंज, तो हो सकता है कि झारखंड का नाम ही लोग लापतागंज कर दें, और लापतागंज का ये लापता मुख्यमंत्री। केवल ईडी के समन, इतना कोई डरपोक कायर हो सकता है? आप सोचे ना, सम्मन पर, अभी तो सम्मन है ना, कोई गिरफ्तारी का वारंट लेके तो कोई पुलिस नहीं ढूंढ रही है, कोई ईडी नहीं ढूंढ रही है, आपसे पूछताछ करना चाहती है। पिछले 40 घंटे से आप लोगों को नहीं नजर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सोरेन परिवार का एक इतिहास है। उनके पिताजी जी अब केंद्रीय मंत्री थे, तो वो भी 21-22 दिन केंद्रीय मंत्री होने के नाते भगोड़ा रहे थे, भागे हुए थे। तो मुझे लगता है कि बेटे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सर, कल ईडी की जो यहाँ उनके दिल्ली के जो रेसिडेंस था, वहाँ पे काफ़ी देर तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलती रही। अंत में उनकी गाड़ी, काफ़ी कुछ दस्तावेज भी ले गए हैं, और ऑपोजिशन उसी बात पे अड़ा है कि एक तरीके से विच हंट है, वेंडेटा है। किस तरीके से देखते हैं? किस तरह का विच हंट है? BMW आप 1.5 करोड़ की जो है किसी दलाल माफिया का लेके घूमते रहो। मुख्यमंत्री का ये काम है कि दलाल के BMW से वो घूमेगा। मुख्यमंत्री का ये काम है कि उसमें कैश रखेगा। मुख्यमंत्री का ये काम है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के जो है बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात रखो। और विछंट यदि है तो लालू प्रसाद जी जब जेल गए थे तो उस वक्त तो देवगौड़ा की सरकार थी, वो खुद ही लालू प्रसाद जी के लोग उनमें मंत्री थे। जब मधु कौड़ा जी जेल में गए और जब सिप्ते रजी के यहाँ, गवर्नर के यहाँ, आपको ध्यान हो कि रेड पड़ा था, उस वक्त तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। यदि कनीमोजी और राजा यदि जेल गए तो डीएमके तो सपोर्ट कर रहा था इस सरकार को। आप जब करते हो तो कोई विछंट नहीं। और आज यदि चोर को जो है हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या जिसने चोरी की है आप पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो विछंट है।
ये कौन सा न्याय है, कौन सा कानून है? तो जनता है, जनता सब समझती है, मोदी जी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। चोरी यदि करोगे तो पूछताछ होगी, चोरी यदि करोगे तो उसका जो है जवाब देना पड़ेगा कि ये संपत्ति कहां से खरीदी। हेमंत सोरेन जी जो कि झारखंड के एक मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद वो ईडी के केसेस के कारण लापता हैं। ईडी उनसे पूछताछ ना कर पाए। जो करोड़ों रुपया उनके घर से मिला, उनके साथी के घर से मिला। जो दिल्ली में BMW गाड़ी मिली, वह भी उनके उस साथी की है जिसके घर से पहले करोड़ों रुपया मिल चुका है इनकम टैक्स की रेड्स के अंदर। और ऐसे लोगों की प्राइवेट गाड़ियां हेमंत सोरेन जी के घर में क्या कर रही थी, इसका जवाब वो दे नहीं पा रहे। मुझे लगता है देश के अंदर पहली बार हो रहा है, दो मुख्यमंत्री इस देश के भगौड़े हुए पड़े हैं। एक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से और हेमंत सोरेन जी झारखंड से।